Hello everyone, welcome to EduSoft. So today we are going to start on a very new topic, that is electronic spreadsheet. We have already covered some topics of electronic spreadsheet in our last session. You can find the video link in our description. You can go through it and access the full video. So coming back to this session of electronic spreadsheet, what we are going to see in this session. The very first topic which we are going to cover in this session is how we can refer and link sheets. So the topic is referencing and linking sheets. Calci allows referring to the cells in another worksheet or workbook from your active worksheet. So within the active worksheet, cells are referred to simply by their cell address, or if you need to refer to a cell which is in another worksheet of the same workbook, then the cell address needs to be preceded by the worksheet name with a sign in between the worksheet name and the cell address. So first of all, let's see it in a very simple way. Suppose I have two worksheets. Suppose this is my sheet 1 and here let's say I want another sheet, that is the sheet 2. Now in sheet 2 here, what I want some of my data of sheet 1. So how I can see this thing? What you have to do, you have to press the equal, and after this what you have to do, you have to give the sheet name, that is the sheet 1. And after this what I want the name of or the data of this one, that is the B3. Let's suppose here, I have to write B3 and after this you have to press enter. तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हिंदी आ गया. तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारा डेटा था शीट 1 में, हमने क्या किया, उस डेटा को हमने कहाँ पे लिंक किया, शीट 2 में हमने उस डेटा को लिंक किया. ये क्या है, एक बहुत एक सिंपल से एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन लिंक डेटा. हम ऐसे दोबारा से किसी भी डेटा को लिंक कर सकते हैं. सपोज हम कहाँ पे गए, शीट 1 में गए. हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे शीट 1 में गए एंड आई वांट टू सी दिस वन. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे साइंस. सो सपोज आई हैव टू प्रेस इधर इक्वल साइन एंड वी हैव टू गो टू दिस शीट 1 एंड आई वांट दिस मैथ. And here you can see this green sign accept, or you can go to this sheet 2 and here you can see green sign. And here you can see जो आपका maths है, जो आपका data था in the same cell in sheet 1, वो आपका कहाँ पे आ गया है, sheet 2 में आ गया है. So in this way you can refer your data from one sheet to the another sheet. Now we are going to see another topic, that is referring to sheets in separate workbooks. अगर हमारे पास डिफरेंट और सेपरेट वर्कबुक्स हैं तो हम कैसे एक शीट से दूसरे शीट में रेफर कर सकते हैं या हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं. The process of referring to the cells of other sheets in separate workbook is same as explained. So here what we have to do, we have to go to the desired sheet and then select the cell we need to refer to. The part to the workbook will be included in the cell reference. Suppose in this cell, I want my data of the other sheet in the other workbook. ये क्या है, ये मेरी एक वर्कबुक है जो हम किस शीट में है, शीट 2 में है. सो मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे उस डेटा को कॉपी करना चाहती हूँ. फॉर दिस here you can see equal sign. So you have to place this equal sign. After this what you have to do, you have to go to the other sheet. आप जिस शीट से, जिस वर्कबुक से डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, आप वहां पे जाएंगे एंड दिस इज माय अदर वर्कबुक एंड हियर यू कैन सी वन शीट, दैट इज द क्लास 2. यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे राहुल जो ये सेल है, मैंने इसको सेलेक्ट किया. मैंने जैसे ही इस सेल को सेलेक्ट किया, यू कैन सी कि जो जिसमें आप इसके डेटा को कॉपी करना चाहते थे, वहां पे क्या हुआ है कि जो उसका एड्रेस है, जो उसका लिंक है, वो यहाँ पे आ चुका है. एंड आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस एंटर. और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आपने देखा कि जो उस वर्कबुक के शीट में जो नाम था राहुल, वो आपके इस वर्कबुक शीट 2 में आपका आ चुका है. सो इन दिस वे यू कैन रेफर दी शीट्स इन दी सेपरेट वर्कबुक.
आपको अगर सेपरेट वर्कबुक में किसी भी शीट को रेफर करना है, आप इस तरह से रेफर कर सकते हैं। नाउ इन रेफरिंग टू शीट्स इन सेपरेट वर्कबुक, हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि हम किसी एक सेल के डेटा को कैसे रेफर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू रेफर द रेंज ऑफ सेल्स? अगर मुझे रेंज ऑफ सेल को रेफर करना है बिटवीन दी सेपरेट वर्कबुक्स, तो क्या मैं रेफर कर सकती हूँ? यस, वी कैन रेफर इट। सपोज हेयर, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, हेयर आई वांट टू रेफर द डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू दिस इक्वल, आपने यहाँ पे इक्वल किया, एंड उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आप उस शीट पे जाएंगे जो आपको डेटा रेफर करना है। रेंज ऑफ डेटा, सो दिस इज द रेंज ऑफ सेल आई वांट टू रेफर। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपकी रेंज ऑफ सेल है वो यहाँ पे रेफर हो चुकी है, दैट इज द 5 rows एंड 2 columns। हमें क्या किया, मैं यहाँ पे दोबारा से वहां पे गई जहां पे मुझे डेटा को रेफर करना है, एंड हेयर यू कैन सी दिस वन, दैट इज A1:B5। तो आपका जो डेटा रेंज है वो क्या है? A1 से B5 आपकी डेटा रेंज है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, एंड हियर यू कैन सी कि जो आपका सिर्फ नेम है वही आपका यहाँ पे अपियर हो रहा है। लेकिन हमने तो क्या किया था? हमने एक रेंज ऑफ सेल, रेंज ऑफ डेटा को यहाँ पे रेफर किया था। सो यू कैन सी हेयर, जब आपका ये प्लस साइन आएगा, आप क्या करेंगे? आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, एंड यू कैन सी कि जो आपका, जो अदर आपकी डेटा वैल्यूज थी वो यहाँ पे आ चुकी है, एंड इन मार्क्स, एंड यू कैन सी रेंज एज दिस वन। तो यही आपका डेटा था, नेम राहुल सनाया एंड उनके मार्क्स। So in this way you can refer one cell data and you can refer the range of cell data in the other workbook. Now we are going to start on our next topic, that is absolute and relative hyperlinks. So here we are going to see how we can insert hyperlinks to our sheets. Hyperlinks connect one document with another. A piece of text or image works as hyperlink, clicking on which fetches the linked document. हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक से हम किसी एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका टेक्स्ट है, इमेज है, वो भी एक हाइपरलिंक की तरह वर्क करता है। हाइपरलिंक्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड नंबर सेकंड इज रिलेटिव हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? An absolute hyperlink stores the complete location where the file is stored. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में आपके पास एक कंप्लीट लोकेशन आती है। जैसे हमने क्या किया था, जो ये राहुल था, एंड यू कैन सी ओवर हियर कि जो राहुल का डेट, यहाँ पे जो इसका पाथ है, यू कैन सी पाथ एज फाइल सी यूजर्स डेल डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये इसका पाथ है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये क्या है? ये एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है। यहाँ पे जो भी आपका एक कंप्लीट लोकेशन आपके पाथ में मेंशन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बोलते हैं। सो इफ द फाइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द लोकेशन, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल नॉट वर्क। अगर यहाँ पे कोई भी एक जो फाइल है वो रिमूव हो जाती है लोकेशन से, तो जो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है वो वर्क नहीं करता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, अगर हम डॉक्यूमेंट का फोल्डर ही हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका लिंक है वो वर्क नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बोलते हैं। इट इज द एब्सोल्यूट लिंक एज इट डिफाइंस द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल। नंबर सेकंड वन इज रिलेटिव हाइपरलिंक। नाउ व्हाट इज रिलेटिव हाइपरलिंक? रिलेटिव हाइपरलिंक क्या होता है? अ रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द करंट लोकेशन। जो आपकी करंट लोकेशन है उस फाइल की, उतना ही पाथ आपके पास रिलेटिव हाइपरलिंक में आता है। रिलेटिव हाइपरलिंक, इट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट लोकेशन। ये क्या होता है? ये उसके जो भी आपकी फाइल है उसके करंट लोकेशन पे डिपेंडेंट होता है, एंड दस द फोल्डर इज सर्च्ड वेयर द एक्टिव स्प्रेडशीट इज बीइंग स्टोर्ड। वहीं पे जो वो पाथ है वो सर्च होगा जहां पे एक्टिव जो आपकी वर्कशीट है वो लोकेटेड होगी। If the complete folder containing the active worksheet or the spreadsheet is moved, the relative link will still be accessible as it is bound to the source folder where the active spreadsheet is stored. यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट फोल्डर है, अगर हम कंप्लीट फोल्डर को हटा देते हैं तब भी आपकी जो स्प्रेडशीट है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो क्या होता है, ये कहाँ से होती है? ये सोर्स फोल्डर से बाउंड होती है।
जो आपकी एक्टिव स्प्रेडशीट होता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट हाइपरलिंक एंड दी रिलेटिव हाइपरलिंक. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में क्या होता है कि आपका कंप्लीट लोकेशन, कंप्लीट पाथ होता है किसी भी फाइल का. एप्से और रिलेटिव हाइपरलिंक में क्या होता है, इसमें सिर्फ करंट लोकेशन का पाथ होता है. Now let's say about hyperlinks, how we can insert hyperlinks. So here you can go to this insert, and in insert you can see this option of hyperlink. इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, that is Ctrl+K. When you click on this hyperlink, a window will appear like this. तो ये क्या है, ये आपकी hyperlink की विंडो है. And here you can see different options how you can insert hyperlink. हमारे पास 4 different options होते हैं. Number one is internet, number second through mail, number third document, and number fourth one is new document. So आपके पास 4 different options हो गए through which you can insert the hyperlink. Now suppose in internet you have this option of URL, you have this option of text. So here I want the URL as, ये क्या है, ये मेरा URL है. And in text what I want to write Google like this. एंड हेयर यू कैन सी इन फॉर्म, आप किस फॉर्म में लेना चाहते हो, आप टेक्स्ट के फॉर्म में लाना चाहते हो, बटन के फॉर्म में लाना चाहते हो. सो हम इसको टेक्स्ट के फॉर्म में ही रखते हैं. एंड हेयर यू कैन सी अप्लाई. तो जैसे ही मैंने अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक किया, यू कैन सी कि जो आपका यहाँ पे एक हाइपर लिंक था गूगल का, वो क्रिएट हो चुका है. अब यहाँ पे गूगल क्यों आया है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट में क्या लिखा है, गूगल लिखा है. एंड लेकिन उसके अंदर जो यूआरएल है वो किसका है, वो www.google.com का है. एंड हेयर मैंने क्या किया, यहाँ पे ओके किया. अब मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेके गई, आपने यहाँ पे देखा होगा Ctrl+Click टू ओपन. तो जैसे ही आपने कंट्रोल एंड क्लिक किया, आपका क्या है कि जो आपका गूगल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो आपका गूगल पेज है. सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी हाइपर लिंक पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. एंड इन इंसर्ट वी हैव दिस हाइपर लिंक. हमने क्या देखा, अभी हमने इंटरनेट का देखा कि हम कैसे हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं. आफ्टर दिस लेट्स सी अनदर वन, दैट इज थ्रू मेल. अगर आपको मेल का हाइपरलिंक क्रिएट करना है, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. आपको रेसिपिएंट एड्रेस देना होगा, सब्जेक्ट देना होगा, एंड हियर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आप क्या रखना चाहते हो, आप क्या टेक्स्ट रखना चाहते हो, क्या नेम रखना चाहते हो, आपको सारे जो भी आपके बॉक्सेस हैं उनको फिल करना होगा. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई एंड ओके. नाउ कमिंग टू दिस वन, दैट इज द डॉक्यूमेंट. अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सिस्टम में डॉक्यूमेंट है, आपको क्या करना है, आपको उसका पाथ देना है. अगर मैं डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ. एंड हेयर इन दिस डॉक्यूमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ब्राउज दिस वन. मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स पे शीट मेंस के नाम से इसको सेव किया था. मैं इसको यहाँ पे हाइपरलिंक की तरह यूज करना चाहती हूँ. नाउ वी हैव टू ओपन दिस वन. मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसका जो पाथ है वो यहाँ पे आ चुका है. यूआरएल आपका आ गया है, जो भी यूआरएल होगा आप इसको किसके फॉर्म में लाना चाहते हो, टेक्स्ट या बटन के. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं. एंड अप्लाई एंड ओके. एंड यू कैन सी कि जो आपका पाथ है उस शीट का वो यहाँ पे आ चुका है. सेम आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एंड क्लिक करना होगा. तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करेंगे, जो आपकी फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी. सो इन दिस वे यू कैन वर्क अपॉन दिस वन. अगेन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो टू दिस इंसर्ट, एंड इंसर्ट से हम हाइपरलिंक पे गए इन डॉक्यूमेंट. सेम हम करते हैं. इस बार हम क्या करेंगे, हम बटन से देखते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ हाइपरलिंक यूजिंग दी बटन. हम दोबारा से यूआरएल पे गए, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे गए. सॉरी, डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया, इसका हमने पाथ लिया, शीट मेन का पाथ ओपन किया. एंड आफ्टर दिस हमने यहाँ पे टेक्स्ट की जगह क्या रखा है, बटन रखा है. नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन दिस अप्लाई एंड देन ओके. जैसे ही मैंने क्लिक किया अप्लाई और ओके पे, और यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका नाम था बटन का वो इस तरह से आ चुका है. तो ये क्या है, ये एक बटन के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल हो चुका है. वी हैव टू क्लिक ओवर हियर. So in this way, you can work upon the hyperlink part. Now let's say how we can edit a hyperlink. So to add, suppose this is my hyperlink. So to edit a hyperlink, what you have to do, you have to just go to this insert and here in the hyperlink, and from here you can edit any hyperlink part. Suppose I want to edit this one. So here you can see URL. So you can change the URL from here. You can change the text from here.
So in this way, you can edit the hyperlink. Now let's say remove a hyperlink. So how you can remove a hyperlink? You have to right click over here, and here you can see option that is delete a hyperlink. So from here you can remove a hyperlink. So this is all about the hyperlink part. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.